Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be well. This is the class of second year chemistry. In previous lecture, we have studied about the benzene, its molecular formula, its nomenclature, and after that we have studied its structure. Now we are going to study about the resonance energy, and stabilization. So we are studied about these three components: the resonance energy, and stabilization. But before studies these, we have to predict the one compound. For example, if we have know about the compound, for example, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज हमें नॉन हो, तो देन वी कैन ड्रा और प्रिडिक्ट इट्स स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, आपके पास है इसमें we have a compound like CH3 which is bonded with CH double bond CH bond CH2 bond OH. In this compound we have the one hydroxyl group and one double bond. If we name this compound, so we have to start the numbering from that carbon which have the functional group at the lowest position. So the hydroxyl group is at lowest position, so we have to start the numbering from that carbon. So it is 1, 2, 3 and this one is 4. First we have to mention its position. We have to show the position of the double bond. So we have to write 2, then count the number of carbon. We have 4 carbon. So it is but in prefix, and we have to finish the name of this one compound by En, because it contains the double bond and the En is written for the double bond containing compounds. So 2-butene, and if it has the OH group, so we have to replace the E alkene E by ON. So its name becomes 2-butenol. So 2-butenol is the IUPAC name of this compound. If we treated this 2-butenol compound with carboxylic acid, so we can obtain the ester. For example, if we are writing this compound CH3, CH double bond, CH bond CH2 bond OH plus carboxylic acid, let's suppose you have acetic acid CH3, C double bond O bond OH. You can write it like this. CH3 C double bond O bond OH. In this reaction, if we have removed the OH group from this carboxylic acid and hydrogen from this butenol, so the water will be removed from that compound and this oxygen will get the negative charge by accepting its shared pair of electron towards itself, because oxygen is more electronegative than hydrogen and it has the capacity, it has the ability to attract the shared pair of electron towards itself. So it gets negative charge, and after getting this negative charge, this oxygen will attack on that carbon which is electron deficient group. In second step, this oxygen will get its electronic density, because the oxygen is more electronegative than carbon. So we will obtain in this reaction CH3 CH double bond CH bond CH2 bond O bond C double bond O bond CH3. So the name of this one compound is, it is the ester functional group. Ester functional group. And the name of this compound is, first you have to count the number of carbon with this carboxylate ion, or for example with this acetate ion. We have 1, 2, 3 and 4. On second carbon we have double bond, so the name of this one compound becomes 2-butenyl 2-butenyl acetate, or you can write the name of this compound like 2
butynyl ethanoate because it has the two carbon. And in next chapter of ester, you will study that how we can name the ester functional group. Ethanoate, 2-butynyl ethanoate. This is the IUPAC name of this one ester group. So it has some predictions that this butanol can easily react with carboxylic acid as well as with other compounds or molecules, like for example if we treated this compound with H2 molecule or Br2 molecule, then which one compound we can obtain? CH3 CH double bond CH CH2 bond OH. It contains a double bond and it has more अटैकिंग आपके पास जो है इसमें जो अटैकिंग की प्रेडिक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक तो आपके पास डबल बॉन्ड है और दूसरा आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो एक आपने देख लिया था कि बाय द रिमूविंग ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप वी कैन ऑब्टेन द एस्टर ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो तो आप लोग इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड है तो देन वी कैन ऐड सम मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, जिसे आप लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं, या जो तो आप लोग Br2 इसमें ऐड कर सकते हैं या Cl2 कोई से भी हाइड्रोजन का कोई मेंबर आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो आप लोग इसमें हैलोजिनेशन भी कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं, और जब आप लोग इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ऐड कर देते हैं देन यू कैन ऑब्टेन द एस्टर फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रीटेड दिस कंपाउंड विद H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके पास ये H2 मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच मे बी निकल, प्लैटिनियम और पैलेडियम, कोई से भी आप लोग कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये टेम्परेचर की भी वेरिएशन इसमें होती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होती। निकल और प्लैटिनियम के लिए एक तरह की टेम्परेचर है, पैलेडियम के लिए अलग टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बनता है H पॉजिटिव और H नेगेटिव। इसमें जो तो आपके पास ये डबल बॉन्ड जो तो आपके पास ये ब्रेक हो जाता है, और ये कार्बन फॉर एग्जांपल इस कार्बन की अगर हम बात कर लें तो ये बॉन्ड जो तो ये आपके पास ब्रेक होकर ये कार्बन ये शेड कर फिर ट्रांस को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो देन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस H प्लस आयन ये जो तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन वाला आकर इस पे अटैक कर लेता है, तो देन वी कैन ऑब्टेन द CH3 CH2, और फिर इस पे आपके पास जो तो पॉजिटिव साइन आ जाता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस कार्बन ने ले ली है। तो देन यहाँ पे जो H नेगेटिव है तो ये आकर इस कार्बन पे अटैक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास CH2 ग्रुप बन जाता है। तो CH2 बॉन्ड OH, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है आपके पास। तो आपके पास जो तो सारे सिंगल बॉन्डेड भी हैं, तो आप जो तो इसका नाम दे सकते हैं ब्यूटेन। E will replace by OL because it contains the hydroxyl group। तो 2 ब्यूटेन फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास ब्यूटेनॉल, ये जो तो आपके पास ये नेम इसका आ जाता है। तो 2 ब्यूटेनॉल से हम ब्यूटेनॉल को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द रिएक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद दिस 2 ब्यूटेनॉल वी कैन ऑब्टेन द ब्यूटेनॉल। इसमें अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे आपके पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, और यहाँ पे आपके पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो है इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड अगर हो तो उसमें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस तरह ये हमने देख लिया है कि इसमें एक डबल बॉन्ड था और दूसरा जो है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो इसमें आपके पास दो प्रेडिक्शंस थी। एक जो है ये था कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करके आपने जो है तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कर लिया था तो वी हैव ऑब्टेन्ड द एस्टर फंक्शनल ग्रुप। सेकंड फिर क्या था कि इसमें जब हमने ये डबल बॉन्ड जो तो ब्रेक कर दिया था विद एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देन वी कैन ऑब्टेन द ब्यूटेनॉल। अगर आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन को ऐड कर लेते हैं, लेट्स सपोज इफ वी आर ट्रीटेड द ब्रोमीन विद दिस 2 ब्यूटेनॉल, तो फिर हमारे पास क्या आएगा Br2। तो यहाँ पे फिर अगेन वही एक डबल बॉन्ड जो था आपके पास यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन, सेकंड कार्बन के साथ सेकंड ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं CH3 CH बॉन्ड Br, फिर CH बॉन्ड Br CH2 बॉन्ड OH। तो इस तरह का कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। फिर इसकी हम नेमिंग जब करते हैं तो ये 1 2
3 और 4। तो आपके पास 2 और 3 में ब्रोमीन है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं 2,3 डाइब्रोमो। फिर इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए हम क्या लेते हैं? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो इसके सफिक्स में ANE आ जाएगा, लेकिन E विल रिप्लेस बाय OL बिकॉज़ इट कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका नाम ये आ जाएगा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनॉल। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनॉल। तो इसमें आप लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास ये एक ही कंपाउंड था, लेकिन इसके हमारे पास जो 3 पॉसिबल जो आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो हमने ऑब्टेन कर लिए थे। इसकी वजह क्या थी? बिकॉज वी हैव 2 रीजंस। द वन इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द सेकंड इज वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसकी प्रेजेंस की वजह से जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसे ट्रीट कर लिया था, तो देन वी हैव ऑब्टेन्ड द एस्टर फंक्शनल ग्रुप। जब हमने इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर लिया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था आपके पास ब्रेक हो चुका था, और उसकी वजह से आपके पास ब्यूटेनॉल जो है ये बन चुका था। फिर हमने जब इसकी हेलोजिनेशन कर ली थी, जब ब्रोमीन को इसके साथ ऐड कर लिया था, तो आपके पास ये 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनॉल ये जो तो आप लोगों ने ऑब्टेन कर लिया था। अभी हम आते हैं इसके जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है आपके पास। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, लेट सपोज इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको हम B कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें जो A है आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो आपके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इनके दरमियान आपके पास है 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो है तो आपके पास जो नॉर्मली हम देखते हैं तो इनका बॉन्ड लेंथ आपके पास 1.4 एंगस्ट्रॉम और 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास बॉन्ड लेंथ है। अभी हम आते हैं अपने बेंजीन की तरफ कि इसमें आपके पास बेंजीन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इस तरह से ये एक बेंजीन का रिंग है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल, फिर आपके पास ये डबल बॉन्ड। इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं और इसको B। एज वी आर एक्सपेक्टेड, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है तो इट हैज द बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, और फिर जो आपके पास ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है तो इट कंटेन्स 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं तो ये इस तरह से बेंजीन में नहीं पॉसिबल, ये जो तो इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। जिस तरह अगर हम नॉर्मल केस में जिस तरह हमने देख लिया था 2-ब्यूटेनॉल में, तो वहां पे आपके पास क्या था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान आपके पास क्या था 1.454 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान आपके पास 1.33 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे भी इस तरह होना चाहिए था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान 1.54 होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान 1.33 एंगस्ट्रॉम होता, लेकिन ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट एंड द डीलोकलाइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसकी वजह से, और सेकंड जो तो आपके पास रेजोनेंस की वजह से इसमें आपके पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान आपके पास ये वाले जो आपके पास ये बॉन्ड लेंथ है ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसमें फिर इसमें जो आपके पास ये रेजोनेंस किसे कहा जाता है, तो रेजोनेंस हम कहते हैं कि जो आपके पास ये द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस किसे कहा जाता है या हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन of real structure by two or more contributing structure is called resonance। आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर होता है, दो या दो से ज्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन
इसके रियल स्ट्रक्चर को वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास इसमें जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हों तो वो जो हम बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस। और जिस कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसमें आपके पास दो और टर्मिनोलॉजीज जो होती है आपके पास ये सामने आएंगी। एक जो है तो आपके पास इसमें एक है आपके पास इसमें कैनोनिकल फॉर्म, और सेकंड इसमें है आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं आपके पास, एक है कैनोनिकल फॉर्म, दूसरे आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड। कैनोनिकल फॉर्म हम किसे कहते हैं कि जो आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स टू रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर के लिए जो आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, और जो आपके पास एक्चुअल या जो रियल स्ट्रक्चर है आपके पास तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये चीजें आप लोग इसमें देखेंगे, या टर्मिनोलॉजीज कि कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड ये कैसे कहते हैं। अभी हम आते हैं आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट से, उन्होंने बेंजीन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे ये प्रिडिक्ट किए थे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ कुछ न कुछ हद तक ये जो है तो मतलब रिसेम्बलेंस रख रहे थे, बट इट इज नॉट ट्रू दैट इट हैव द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल ट्रू नहीं है कि आपके पास जो है ये बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कुछ न कुछ उसके साथ कंट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। अभी हम चलते हैं आपके पास जो है तो यहाँ पे आपके बुक में दो स्टैंडर्ड्स जो है तो सिर्फ इंक्लूडेड हैं। एक जो है तो आपके पास इसमें केक्यूल है और दूसरा आपके पास डीवर है। तो ये दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है तो वो हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपके पास पेश किए थे। तो अभी हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। इसमें आपने वही मेंटेनेंस रखनी है, डबल बॉन्ड सिंगल, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका जो सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो वो आपके पास जो है किस तरह से ड्रा होगा। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने यहाँ पे चेंज कर देनी। पहले जो तो यहाँ पे थी, अभी जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो आप लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने वही मेंटेनेंस रखनी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास जो डबल बॉन्ड। अच्छा, दूसरे जो है तो आप लोग इसमें ये भी याद रखें कि जब भी आप लोग रेजोनेंस इफेक्ट को शो करते हैं, जो आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब इसमें आपके पास रेजोनेंस हो जाए तो उस रेजोनेंस का साइन जो है तो आपके पास ये है, हैविंग हेड ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड में जो है आपके पास ये एरो हेड जो है तो ये होना चाहिए। तो इससे हमें ये रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि दिस इज द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। आपके पास ये दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पास केक्यूल ने जो ये पेश किए थे। केक्यूल ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये आपके पास सेकंड। फिर आपके पास जो तो डीवर ने, उन्होंने कौन से स्ट्रक्चर्स पेश किए थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर यहाँ पे डबल, और इसके दरमियान ही जो है तो आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो है तो उन्होंने ड्रा कर दिया था। फिर सेकंड जो है तो इनका ये था, और थर्ड जो है तो इनकी प्रेडिक्शन ये थी। ये इनकी ये थ्री स्ट्रक्चर्स हैं, ये थ्री, ये फोर्थ वन, एंड दिस वन इज फिफ्थ। ये आपके पास जो D1 में ये प्रेजेंट किए थे। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है आपके पास, एक केक्यूल वाला और सेकंड है तो आपके पास डीवर वाला। तो अगर हम केक्यूल में देख लें तो अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कि आपके पास जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो तो आपके पास ये मेंटेन हो सकती है।
सेकंड जो है तो इसमें, अच्छा ये पॉइंट्स भी आपके साथ लिख लें कि एरोमेटिक कंपाउंड में एक आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये होनी चाहिए। सेकंड जो है तो इसमें आपके पास डबल सिंगल की अल्टरनेशन आपके पास होनी चाहिए, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की आपके पास अल्टरनेशन इसमें होनी चाहिए। और थर्ड जो तो आपके पास ये हकल्स रूल जो हमने मतलब पहले पढ़ लिया था, तो उसके मुताबिक आपके पास ये स्ट्रक्चर होने चाहिए। बहरहाल यहाँ पे अगर हम इसी दो पॉइंट्स पे बात कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड आपके पास, कौन से स्ट्रक्चर्स आपके पास इस तरह हैं जो रियल स्ट्रक्चर के साथ कुछ ना कुछ रिसेम्बलेंस ये रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें तो इस कार्बन मतलब ईच कार्बन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस स्ट्रक्चर हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जितनी भी आपके पास ये कार्बन है तो हर एक कार्बन की आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट बात। सेकंड है तो इसमें आपके पास अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड वो भी हमारे पास इसमें मेंटेन है। अगर इसका हम सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ये देख लें जो आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो वो भी आपके पास यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसने मेंटेन की हुई है। सेकंड बात कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसकी अल्टरनेशन भी आपके पास जो तो ये मेंटेन है। अभी हम ड्यूअर की स्ट्रक्चर की तरफ अगर चले जाएं तो यहाँ पे देखें आप, ये जो तो आपके पास इस कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, इस कार्बन ने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, लेकिन बिटवीन दीज टू कार्बन अगर हम देख लें तो इस कार्बन के दरमियान आपके पास जो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन ने और इस कार्बन ने ये सिंगल बॉन्ड जो ये बनाए हुआ है, इसका डबल बॉन्ड जो तो आपके पास नहीं है, तो इसका ये एक प्रेडिक्शन ये भी गलत हो जाता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसने मेंटेन नहीं की। सेकंड, यहाँ पे जो आपके पास अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल है तो ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को मेंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसके ये स्ट्रक्चर ये भी जो आपके पास रिजेक्टेड है। फिर सेकंड जो इसने प्रेडिक्शंस दी थी तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगेन आपके पास ये डबल बॉन्ड है, इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन व्हाइल दिस सिंगल बॉन्ड जो आपके पास बिटवीन दीस टू कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो एरोमेटिसिटी को बेंजीन के लिए वो मेंटेन नहीं कर रहा, तो ये भी आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर भी इसका रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड बात, जो आपके पास अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड है तो वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर आपके पास अगेन सिंगल बॉन्ड है, तो ये फिर भी आपके पास ये फॉलो नहीं हो रहा। थर्ड, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें जो इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हवाले से दिया था जो कैनोनिकल फॉर्म था, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट दिस वन इज अगेन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन which is not up to standard, which is not up to aromaticity, जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए आपके पास वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो इनकी ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो डीवर ने हमें पेश किए थे तो वो सारे आपके पास रिजेक्टेड हो चुके थे। ये जो आपके पास केक्यूल के स्ट्रक्चर है ये भी आपके पास एक्चुअल या रियल स्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, लेकिन ये आपके पास तकरीबन 39% आपके पास जो ये एक्यूरेट के साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो आपके पास ड्यूअर वाला स्ट्रक्चर है तो ये तकरीबन आपके पास 7.3% जो है इसी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इट मींस दैट कि यहाँ पे जो आपके पास ये केक्यूल वाला स्ट्रक्चर है तो ये फिर भी रियल स्ट्रक्चर के साथ कुछ ना कुछ हद तक अप टू सम एक्सटेंट इट इज रिसेम्बल विद द रियल स्ट्रक्चर और द एक्चुअल स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द केक्यूल स्ट्रक्चर, द फ्रेडरिक ऑगस्ट केक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो तो अभी हम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी आपके पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की थी कि इसके रियल स्ट्रक्चर को हम ऑब्टेन कर लें, लेकिन अभी तक आपके पास ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर किसी ने ऑब्टेन नहीं किया हुआ। तो अच्छा, अभी हम आते हैं अपने इसमें जो लास्ट पॉइंट्स हैं उसकी तरफ। ये तो था आपके पास कंट्रीब्यूशन जो आपके पास ये कैनोनिकल फॉर्म थे और रियल स्ट्रक्चर था उसकी तरफ आ चुके थे। अभी हम आते हैं यहाँ पे, जिस तरह आपके पास यहाँ पे जो ए और बी जो आपके पास इसमें अगर हम इसमें बॉन्ड कंसिडर कर लें तो इसका ए जो स्ट्रक्चर है आपके पास, तो ये हमने कह दिया था
कि ये आपके पास जो है 1.54 आर्मस्ट्रांग जो है ये होना चाहिए, और जो भी आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये आपके पास 1.33 आर्मस्ट्रांग जो है ये होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल जो है तो ये आपके पास दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बॉन्ड लेंथ, ये जो तो आपके पास इस बॉन्ड लेंथ के इक्वल नहीं है। जिस तरह नॉर्मली हमारे पास अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसके दरमियान जो तो 1.54 आर्मस्ट्रांग होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हम देख लें तो उसके दरमियान आपके पास 1.33 आर्मस्ट्रांग ये होता है। लेकिन बेंजीन जो है तो इसको फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज इट हैव द delocalization pi electronic system, it has the resonance energy, so that is why it cannot follow this bond length। ठीक है, तो ये था आपके पास इसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये था आपके पास रेजोनेंस। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आपके पास है इसमें रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है आपके पास द रेजोनेंस एनर्जी, वो अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी ये हम किसे कहते हैं? द डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। जो आपके पास एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके लिए जो एनर्जी आपके पास रिक्वायर हो, और जो आपके पास जो कैनोनिकल फॉर्म है, तो इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस जब हम देख लेते हैं तो उस एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। या जो तो आप लोग इसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो आपके पास द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन the actual structure, actual or real structure and its canonical form or structure is called resonance energy। जो आपके पास इसमें एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल और रियल स्ट्रक्चर एंड कैनोनिकल फॉर्म या स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। Alright, so this is the definition of the resonance energy, that the energy difference between the actual or real structure and its canonical form or structure is called the resonance energy। Inshallah, in next lecture we will explain this one resonance energy in detail। आप जो तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर देख लोगे कि इसे हम जो तो डिटेल से पढ़ेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी जो तो आपके पास ये किस तरह होती है, और इसमें जो आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, फिर साइक्लोहेक्साडाइन और साइक्लोहेक्साट्राइन, जैसे बेंजीन को जो तो हम ये साइक्लोहेक्साट्राइन भी कह सकते हैं। वो आप लोग वहाँ पे देख लोगे कि वहाँ पे आपके पास जो इसमें एनर्जीज हैं तो आपके पास क्या आती हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लेन दिस वन टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।